So for that, the entire credit goes to Dr. Shailen Kumar Singh, sir. Okay, and today the major theme in which our next eminent speaker would be focusing would be how to prepare the PhD synopsis. This is one of the major aspects of research methodology, and as we know, the group of our participants is a mixed group where beginners are also there. So this is basically a theme for our beginners because some of the basic aspects which we should know before preparation of the PhD synopsis, because synopsis is a framework for the conduction of the entire research work. So I heartily welcome my eminent speaker, Dr. Amisha Gupta, ma'am. Ma'am, you're heartily welcome. To brief about Dr. Amisha Gupta, she is a family member too, because ma'am belongs to Department of Economics, Banaras Hindu University. She is assistant prof there in Department of Economics, Banaras Hindu University. She has pursued her doctorate and post-graduation from Banaras Hindu University. Her main area of specialization is industrial economics and econometrics too. She has more than 5 years of current research experience as well as teaching experience. She is also a life member of Uttar Pradesh Economic Association as well as India Economic Association. So I heartily welcome you, Amisha ma'am. And now I hand over the mic to you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much. And thank you, organizers, for giving me such an opportunity to present or you to speak on this topic. And since I have been told that most of you are in, you can say, in a middle of your research or some of the in the beginners, मीन्स एक जो सिनॉप्सिस बनाने की प्रोसेस है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसा कि वजह से आई हैव बीन टोल्ड that most of you are from Hindi belt, therefore I will try to be in bilingual, or you can say most of the part of my speech will be in Hindi, right? तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर आपको कर दूं। Okay, is my PPT visible to all? Okay, thank you. So, my topic of presentation is writing a synopsis. So, PhD करने का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है कि हम जो PhD करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आती है आपकी सिनॉप्सिस। यानी कि सिनॉप्सिस ज़्यादा कुछ नहीं होती, सिनॉप्सिस इज जस्ट द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रपोज्ड वर्क, और यू कैन से इट इज अ एक सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म में ये आपकी एक तरह से प्लान तरीके से बताता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर रिसर्च। मतलब एक तरह से ये आपकी प्लानिंग को बताता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर रिसर्च एंड हाउ यू आर गोइंग टू परसीव दैट रिसर्च। किस तरह से आप अपने रिसर्च को करने जा रहे हैं, एक प्रॉपर तरीके से जो रोड मैप होता है वो आपको पता चलता है आपकी सिनॉप्सिस से। और जैसे कि हम इसमें अभी अगर हम अपनी पीपीटी को देखें तो पीपीटी में जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अ रिसर्च सिनॉप्सिस इज अ शॉर्ट आउटलाइन of what your research thesis is and all the steps you propose to follow in order to achieve them। मीन्स कि यहाँ पर कोई भी हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं वो रिसर्च कैसे हम कैरी करने वाले हैं, कैसे उसमें क्या चीज़ें आएंगी, क्या उनसे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, क्या वो रिसर्च जो भी हम कर रहे हैं उसमें कुछ नई नॉलेज निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसे उस नॉलेज को हम डेवलप करेंगे। वो पूरी तरह से एक फ्रेमवर्क जो तैयार किया जाता है या हम कह सकते हैं एक जो रोड मैप तैयार किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस से ही पता चलती हैं। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वॉट एवर टॉपिक यू हैव चोजन मैनी वर्क हैज बीन ऑलरेडी डन ऑन दैट। मतलब जो आपने टॉपिक चुना हुआ है एग्जैक्टली उस पर ऑलरेडी इतना सारा काम हो चुका है कि आपको नया एस्पेक्ट समझ ही नहीं आ रहा है। वॉट आर द ऑब्जेक्टिव यू आर गोइंग टू टेक इन योर स्टडी। आप अगर अपनी स्टडी में कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उस टॉपिक को आप कैसे अचीव करेंगे, उसको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ since you are going to achieve certain kind of objectives in your study, what are the facilities you have been provided with your research work। जो आपके proposed research है आपके पास उसके लिए कौन कौन सी आपके पास फैसिलिटीज हैं, कौन सी चीजें हैं जिनके थ्रू वो सारी चीजें आप कर सकेंगे। तो सवाल वही आता है कि ये चीजें होंगी कैसे।
तो ये जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर जैसे इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, अगर कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रैंडमली आप कहीं पे भी कोई भी दीवार उठा दी और वहां बिल्डिंग तैयार हो गई। एक बिल्डिंग बनाने के लिए इवन एक कोई आप सिटी भी डेवलप कर रहे हैं, कोई आप पार्क डेवलप कर रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर तरीके से आपको एक नक्शा चाहिए होता है, एक मैप चाहिए होता है, और उसी मैप के बेसिस पे फिर आप चीजों को प्रॉपर तरीके से करते हैं, मतलब उसी को फॉलो करते हुए। क्यों आप मैप को फॉलो करते हैं? क्योंकि कोई भी चीज जब हम एक प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज्ड एक प्लान वे में करते हैं तो वो एक तो पहली चीज होती है कि ऑर्गेनाइज्ड होती है, सेकंड चीज ये होता है कि आपका टाइम सेव होता है, और तीसरी चीज ये होती है ये एक इफेक्टिव मैनर में होती है, यानी कि कॉस्ट सेविंग भी यहाँ पर आपकी प्रॉपर तरीके से होती है, जो कि टाइम एंड कॉस्ट दैट आर द मोस्ट टू मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्स्टेंट फॉर द रिसर्चर। किसी भी रिसर्चर के लिए एक कॉन्स्टेंट के तौर पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक टाइम, दूसरा उसकी कॉस्ट। तो कोई भी रिसर्च कैरी करने से पहले उसको यही तो चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि कितने टाइम पीरियड में उसको ये चीजें कवर कर लेनी है, और साथ ही साथ जो भी वो काम कर रहा है उसमें क्या कॉस्ट आने वाली है। ऐसा तो नहीं कि बहुत ऐसा हमने प्रोजेक्ट उठा लिया, रिसर्च के लिए टॉपिक ले लिया कि जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव उसमें हमारा आ जाएगा, कि डेटा कलेक्शन में हमें कितनी कितनी दूर जा करके कलेक्ट करना पड़ रहा है, टाइम भी अलग से जा रहा है, ना तो कॉस्ट सेव हो पा रही है ना टाइम सेव हो पा रही है, और पता चलता है उसके पहले हमने उसके बारे में कोई स्टडी भी नहीं करके रखी हुई है, एक रैंडम वे में करते चल रहे हैं, और 2 साल बाद पता चलता है कि हमारा टॉपिक ही गलत है। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स ना आने पाए इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से एक सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपकी एक सिनॉप्सिस अगर बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, तो सिनॉप्सिस अच्छी बन जाने का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके रिसर्च का कह सकते हैं 25 to 30% वर्क ऑफ योर रिसर्च हैज बीन डन इफ योर सिनॉप्सिस इज properly developed in a synchronized manner। अगर आपकी सिनॉप्सिस बहुत ही आपके प्लान्ड वे में एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपने प्रिपेयर की है, तो मतलब यही होगा कि रिसर्च में अब आपको सिर्फ 65 to 70% यहाँ पर काम करना बचा रहेगा, क्योंकि सिनॉप्सिस ही एक मेन फोकस वाली चीज होती है। अब आपका अगर सिनॉप्सिस तैयार हो जाएगा तो सिर्फ आपने जो उसमें चीजें ली है तो बस उसको फॉलो करते चलना है, उसी एक प्रॉपर तरीके से कि स्टेप वाइज हमें आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि उसमें फिर रैंडम चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि उसके पहले हमने उतनी स्टडी उतनी सारी चीजें करके उसको डेवलप किया है जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से उसको कर सकते हैं। तो सवाल हमारा फिर वहीं पर आकर के अटक जाता है कि एक्चुअल में अगर सिनॉप्सिस बनानी है तो ये बनाई किस तरह से जाए, यानी कि किस तरह से हम अपनी सिनॉप्सिस को बनाएंगे, क्या करेंगे कि सिनॉप्सिस हमारी अच्छी तरीके से बने, कि रिसर्च का हमारे जो प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हमारा हो जाए। तो इसके लिए एक अच्छी सिनॉप्सिस बनाने के लिए आपको यहाँ पर ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इन द सेंस सबसे पहला आता है कि आपको एक टॉपिक चूज करना होगा। टॉपिक चूज करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके सुपरवाइजर ने आपको कोई टॉपिक अलॉट कर दिया, या आप कह सकते हो कि आपने देखा कि अरे हमारे सीनियर्स ने इस पे काम किया हम भी इस पे काम कर लें, या आपको अचानक से न्यूज़पेपर में आज पढ़ा कि अरे ये टॉपिक चल रहा है, चलो हम इसी पे काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसे रैंडमली कोई भी टॉपिक चूज नहीं किया जाता है, इसके लिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अगर हम सिनॉप्सिस में देखेंगे तो सिनॉप्सिस में सबसे पहले आपका आ जाएगा कि टॉपिक को कैसे फ्रेम करते हैं, उस कह सकते हैं कि आपके थीसिस का टाइटल क्या होगा। तो सबसे पहला यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है आपकी इंट्रोडक्शन विच विल कवर द स्टेटमेंट ऑफ योर प्रॉब्लम एज वेल एज द टॉपिक यू आर गोइंग टू वर्क अपॉन। सेकेंड थिंग आती है आपकी रिव्यू ऑफ लिटरेचर। Review of literature is the most important part in the synopsis because it tells you whether or whatever work you are going to do in your thesis has been already done or not done। Means ऐसा तो नहीं है कि यू आर एक्सप्लोरिंग द एक्सप्लोर्ड थिंग ऑलरेडी, और यू कैन से यू आर री इन्वेंटिंग द व्हील अगेन एंड अगेन। मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है उसी चीज का बस आप एक रिपीटेशन कर रहे हैं, डबल एक तरह से अपनी एनर्जी और कह सकते हैं कि अपनी कॉस्ट अपनी टाइम सब चीज का वेस्टेज कर रहे हैं, या आप कुछ नया चीज कर रहे हैं। ये किससे पता चलेगा?
ये चीज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर से ही पता चलती है कि जब हम जितना ज़्यादा लिटरेचर, जो गिवन लिटरेचर, जो अवेलेबल लिटरेचर है हमारे पास, उसको जितना ज़्यादा हम रिव्यू करते हैं उससे हमें पता चलता है। और उन लिटरेचर को पूरी तरह से एक तरह से पढ़ने के बाद, उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करने के बाद, वी आइडेंटिफाई अ रिसर्च गैप, और you can say we identified that gap from the given literature that has not been explored yet, जिसपे अभी तक कोई भी काम नहीं हो सका है, वो हमारा रिसर्च गैप होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, कि जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम उठाई है उसको हम कैसे, मतलब कौन सी कुछ चीज़ें होंगी जिनके थ्रू हम, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनके थ्रू जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आएगा hypothesis, and which is also a hypothesis, or you are going to take research question, which is followed by research methodology, which in itself is a big topic which we are going to discuss later. And second one is that कि research methodology में ही आप बताएंगे कि वो कौन सी मेथड, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं या जो आपने रिसर्च क्वेश्चंस लिए उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए वो कौन से तरीके होंगे, वो कौन सा प्रोसेस होगा, वो कौन सा सैम्पलिंग यूनिट होगा, ये सारी चीज़ें जो प्लान्ड वे में आप चलेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी रिसर्च मेथोलॉजी में ही मिलने वाली है। और नेक्स्ट थिंग जो आएगी वो आएगी आपकी डेटा एनालिसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस you will say that how, what are you are going to find, and on the basis of findings and recommendation what are the policy implication of your research, मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसकी कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशन है भी कि नहीं है। एंड फाइनली you go through the research limitations. Research limitations mean each and every aspect of a particular topic cannot be addressed by a researcher because he has some kind of time constraint और cost constraint और बहुत सारे constraints होते हैं, तो किसी भी एक टॉपिक की सारी चीज़ें वो एक साथ नहीं उठा सकता है, इसलिए वहाँ पर वो उसकी लिमिटेशंस भी यहाँ पर बताएंगे, और इन्हीं लिमिटेशंस को फर्दर जो आपके दूसरे रिसर्चर होते हैं वो एड्रेस करते हुए इसमें से नया काम भी कर सकते हैं। और फाइनली आ जाएंगी आपके रेफरेंसेस। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, दैट इज द फर्स्ट वन, यानी कि जब कभी भी हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क। टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क का यहाँ पर मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपका रिसर्चर है, रिसर्चर को अब कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी टॉपिक ऐसे रैंडमली नहीं लिया जाता है, क्योंकि जब रैंडमली लिया जाएगा तो ऐसे में जो रिसर्चर होगा he or she will lose interest in that topic, and whenever a researcher loses interest in particular topic he won't be able to learn anything from that given research, and he won't be able to put his all input in that research so that a profitable or a good output can be obtained। मतलब यही है कि अगर आपके रिसर्चर को अगर उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो जैसा उस टॉपिक पे काम होना चाहिए, उसका जो आउटकम होना चाहिए वो किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रिसर्च सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी, या रिसर्च इसलिए नहीं किया जाता कि सोसाइटी में आपके नाम के आगे एक डॉक्टर लग जाएगा। रिसर्च यहाँ पर जो किया जाता है वो मेनली यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हमारी सोसाइटी में चलती आ रही हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बेसिस पर हम कहते हैं कि उसको हम जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर आप रिसर्च को अपने पाते हैं। और वो कैसे होता है, सबसे पहला इसमें यही काम होता है कि जो टाइटल होता है, जो टॉपिक आप ले रहे हैं रिसर्च का, वो टॉपिक इस तरह से होना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि एक तो आपकी इंटरेस्ट का होना चाहिए, आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक होता है। अब लोग ये कहेंगे कि ये हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि डे टू डे आप जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके आसपास में, आपकी इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में जो भी चीज़ें परफॉर्म की जा रही हैं उनको आप एक तरह से ऑब्जर्व करते हैं और आप देखते हैं कि अरे ऐसी प्रॉब्लम चल रही है तो इस तरह से इसका सोल्यूशन क्या कुछ हो सकता है, या सिर्फ ये प्रॉब्लम बनती रह जाएगी। तो ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपकी एक क्यूरोसिटी यहाँ पर डेवलप की जाती है, यानी कि जब ऑब्जर्व आप कोई चीज़ को कर रहे हैं
तो उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप देखते हैं कि अरे मतलब होते हैं कई टॉपिक्स जो कि आपको क्यूरियस करते हैं, और उन क्यूरोसिटी के बेसिस पर आप क्या करते हैं यहाँ पर वो पर्टिकुलर, क्योंकि क्यूरोसिटी होती है अल्टीमेट आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पीछे, और फिर उससे जब आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलता है तब एक ब्रॉड एरिया आप उसको वहाँ पर डिसाइड करते हैं। और जैसे ही ब्रॉड एरिया डिसाइड होता है, ब्रॉड एरिया के साथ साथ आप ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर आपने ब्रॉड एरिया ले लिया और आप उसी पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके साथ आप उस टॉपिक को नैरो डाउन करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात अगर करें, तो जैसे द करंट इन करंट सिनेरियो, और यू कैन से इन करंट सिनेरियो द कोविड 19 इज द बर्निंग इशू। ठीक है, अब कोविड 19 को अगर हम ले लें, तो कोविड 19 पे हम रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि कोविड 19 के each and you have taken each and every aspect of COVID-19, what are the causes behind COVID-19, how it is going to impact each and every individual in a state, in a country, in world, मतलब किस तरह से, और उसके डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हर तरीके के एस्पेक्ट को हम देख रहे हैं। तो ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ हम कोविड 19 ले लेते हैं कि हमारा रिसर्च का टॉपिक ये होगा, तो इससे चीज़ें हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना जो रिसर्च टॉपिक हम ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, इसको नैरो डाउन करेंगे। नैरो डाउन का मतलब होता है वी विल डाइसेक्ट आवर ब्रॉड एरिया इनटू सब एरिया। कैसे करेंगे कि कोविड 19 का मान लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो इम्पैक्ट कैसा है, आइदर इट कैन बी अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इट कैन बी अ सोशल इम्पैक्ट, इट कैन बी अ पॉलिटिकल इम्पैक्ट, बहुत तरीके के ये इम्पैक्ट जो होंगे वो हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर अब इतने तरीके के इम्पैक्ट है, तो क्या सिर्फ हम इसी पे देख लें, नहीं, इसको हम और डाइसेक्ट कर सकते हैं कि अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19, तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट किस चीज़ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप टॉपिक बता रहे हैं तो टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही पता चल जाए कि एक्चुअल में आप रिसर्च में करना क्या चाहते हैं। ठीक, अब अगर हमने केवल कोविड 19 लिया तो इससे पता नहीं चल रहा है कि हम रिसर्च में क्या करना चाह रहे हैं। अगर इकोनॉमिक इम्पैक्ट केवल लिया कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19, तो इससे भी नहीं पता चल रहा है कि हमारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम किस पे देखना चाह रहे हैं, किस चीज़ का हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे एनालिसिस यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर दैट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और यू कैन से सेक्टर, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ किसी चीज़ को भी आप ले सकते हैं, किसी सेक्टर को भी ले सकते हैं, एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी उसकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन केस अगर हम सेक्टर वाइज ले लेते हैं, मान लेते हैं उन सेक्टर को भी डाइसेक्ट करके हम डायरेक्ट टूरिज्म सेक्टर को ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नैरो डाउन करते करते कोविड 19 से हमारा टॉपिक यहाँ पर डाइसेक्ट होकर के क्या आ जाता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन टूरिज्म सेक्टर। लेकिन ये टॉपिक अभी भी आपका अधूरा है, क्योंकि अब यहाँ पर आप क्या टूरिज्म सेक्टर की कहाँ की बात कर रहे हैं, किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वो रीजन भी स्पेसिफाई यहाँ पर करना होगा। मतलब ये आपका ऑप्शनल रहता है कि मत कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिसर्च टॉपिक आपका इस तरह से होना चाहिए कि उसको देखते ही पता चल जाए कि एक्चुअल में रिसर्चर उस टॉपिक में करना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से लेके चल रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 ऑन टूरिज्म सेक्टर इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये क्या हुआ, एक टॉपिक आपका हुआ जिससे आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि हाँ, वाराणसी में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें किस तरह से आपका कैसे यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली हमें पता चलती हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली होती है कि टॉपिक हमारा ऐसा ना हो जाए कि वो आधा पन्ना और एक पन्ने का टॉपिक ही हमारा बन जा रहा है। यानी कि अब हम जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं इसमें असेट क्रिएशन पे क्या असर पड़ा, इनकम जनरेशन पे क्या असर पड़ा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ा, बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे कि हम यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अब अगर ये सारी चीजें हम अपने टॉपिक में ही डाल देंगे, तो ये टॉपिक आपका पूरा एकदम आधे से एक पन्ने तक का बन जाएगा, एंड इट विल नॉट लुक वेरी गुड। तो इसलिए जो टॉपिक होना चाहिए वो आपका एक प्रिसाइज भी होना चाहिए, और प्रिसाइज होने के साथ साथ टॉपिक ऐसा होना चाहिए
आपकी सारी चीज़ों को बताता हो कि एक्चुअल में आप इस टॉपिक में करना क्या चाहते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये आती है कि जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो आपने टॉपिक अपना चूज किया है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप जो करंट सिनेरियो में चीज़ें चल रही हैं उसी पे काम किया गया हो। ठीक है, यानी कि अगर जैसे अभी आपकी पैंडेमिक की सिचुएशन है तो इस पे हमने काम कर लिया, या आपकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ रही है तो उस पर काम कर लिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ आप करंट चीज़ों पे काम करें। ये भी हो सकता है कि कुछ प्रीवियस यानी कि बहुत पहले की चीज़ें जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उनमें बहुत सारे रिसर्च हुए हैं लेकिन आज भी कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो उनके कारण भी ये हो सकता है कि हम इसको और आगे मतलब वो पुराने टॉपिक पे भी काम किया जा सकता है। करंट एज वेल एज पास्ट टॉपिक्स को भी यहाँ उठा करके हम अपने एक कह सकते हैं कि जो रिसर्च का टॉपिक है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि जो टाइटल ऑफ द प्रपोज्ड वर्क मस्ट बी प्रिसाइज एंड इट शुड टेल what you are going to do in your research, right? Now सेकेंड चीज जो आती है वो आती है आपका इंट्रोडक्शन। पहला हो गया कि आपने क्या टाइटल ली। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये बताती है कि यहाँ पर आप किस तरह से, यानी कि हम कह सकते हैं कि द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन is to provide the necessary background or context for your research problem। यानी कि यहाँ पर ये पता चलता है कि जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किस तरह से फॉर्मुलेट की जाती है। ठीक है, अब रिसर्च प्रॉब्लम का यहाँ पर मतलब ये आता है कि जो हमने टाइटल लिया यानी कि जो हमने एक टॉपिक लिया है रिसर्च करने के लिए, अब उसमें हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। यानी कि हमने एक टॉपिक ले लिया, अब उसका बैकग्राउंड किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। बैकग्राउंड इन द सेंस कि यहाँ पर हमें तीन चीज़ इसमें आती है कि स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम में तीन चीज़ मेनली हमें बतानी होती है। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम। सेकंड, व्हाई दैट प्रॉब्लम इज इम्पोर्टेंट, व्हाई the research must conduct on that problem, and third thing is what should be done, मतलब what is the purpose of doing that particular research। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे what is the problem, अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर अगर आप न्यूज़पेपर्स वगैरह देखें तो उसमें कई बार आता है कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स जो फार्मर्स के होते हैं वो आज मतलब हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली वो लगातार आपके होते जा रहे हैं। तो क्या ऐसा रीज़न है जो फार्मर्स आपके सुसाइड करने को इतने मजबूर हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम एक इस तरह से होती है कि आपको मतलब एक तरह से सोचने पे मजबूर करे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमारी आई, अगर हमने एग्जाम्पल जो अपना लिया वो यही लिया कि यहाँ पर अगर सुसाइडल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं फार्मर के, तो क्या ये एग्रेरियन क्राइसिस से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है क्या। और अगर ये एग्रेरियन क्राइसिस से आपकी रिलेट कर रही है तो क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की, मतलब वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इट इज़ बीइंग मतलब वाई दैट प्रॉब्लम इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, क्यों हम उसको इन्वेस्टिगेट करें, व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड दैट प्रॉब्लम, वाई इट इज़ ऑफ सो कंसर्न, क्यों हम इसको पढ़ाई करें, इसके बारे में क्यों हम रिसर्च करें। तो मतलब ये है कि क्योंकि अभी तक इस पे जो भी काम हुए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्रेरियन क्राइसिस पे जो भी अभी तक काम हुए हैं वो जो भी आंसर्स देते हैं वो बहुत ही कन्विंसिंग आंसर्स नहीं होते हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रॉब्लम्स हैव नॉट बीन आंसर्ड कन्विंसिंगली। यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको बहुत कन्विंसिंगली बहुत आपके प्रॉब्लम्स को एकदम एड्रेस नहीं किया गया है। जो आंसर्स है, जो रिजल्ट्स, जो फाइंडिंग्स आई है उसको बहुत अच्छी तरीके से हमें पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसको करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट चीज यानी कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में व्हाट शुड बी डन, मतलब इसमें क्या किया जा सकता है। इसमें किया ये जा सकता है योर पर्पस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब आप उस प्रॉब्लम को जो भी आपने, जैसे हमने अगर फार्मर सोसाइटल आपकी एग्रेरियन क्राइसिस को लिया है, तो अगर एग्रेरियन क्राइसिस को ले रहे हैं तो एग्रेरियन क्राइसिस को किस तरह से दूर कर सकते हैं, पहले आप उसकी स्टडी करेंगे, यही सारी चीज़ें करेंगे कि स्टडी करेंगे, फिर स्टडी करने के बाद उसके आप अलग से जो भी हम रिसर्च में चीज़ें करेंगे
उसके बेसिस पे कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, यही सारी चीजें आपकी यहाँ पर आती हैं। यानी कि अपने यहाँ हम पहले जो प्रॉब्लम हमने फॉर्मुलेट की है, रिसर्च प्रॉब्लम, उसमें मेनली यही देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे अकर हुई, क्यों इम्पोर्टेंट है कि इस पर रिसर्च किया जाए, और किस तरीके से इस पर रिसर्च किया जाए कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली रहती है कि दिमाग हमारे बहुत क्यूरियस रहता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप रिसर्च का एक ऐसा टॉपिक ले लें कि दैट इज नॉट फिजिबल, यानी कि वो टॉपिक आपका फिजिबल ही नहीं है, हम कोई ऐसा टॉपिक ना उठा लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिबिलिटी की बात की जा रही है, तो आपने देखा कि हॉकर्स लोन, अभी प्रेजेंट टाइम में आप कह सकते हैं कि हॉकर्स के लिए बहुत तरीके के लोन्स बैंक आपके प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अब देखना चाहते हैं कि ये हॉकर्स को जो लोन मिल रहा है, क्या ये जो लोन मिल रहा है ये इकोनॉमिकली उनकी अपलिफ्टमेंट में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा कि ये लोन का इम्पैक्ट देखना है, तो मतलब पहले आपके पास इन लोगों का डेटा होना चाहिए कि किन लोगों को ये हॉकर्स लोन प्रोवाइड किया गया है। तो क्या ये फिजिबल होगा कि बैंक आपको अपने हर एक कस्टमर की, या हम कह सकते हैं whether it is possible that bank is going to give you or provide you details of each and every customer who has taken this hawker loan। क्या ऐसा पॉसिबल है कि गवर्नमेंट आपके जो बैंक से ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम वो चीजों पे हमें रिसर्च करनी चाहिए जिसपे कि हम देख सकें कि जो वो प्रॉब्लम है उस पे हमें रिसर्च करने के लिए जो चीजें, जो आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें हमें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और उनके बेसिस पे ही ये रिसर्च हम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, यानी कि पहले हमने टाइटल देखा, दूसरा हमने रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट किया कि हमारे एक बैकग्राउंड हमने तैयार किया कि रिसर्च में कैसे हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद यहाँ क्या आता है, उसके बाद आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। And as I said earlier, the review of literature is the most important part in your synopsis, because review of literature, or you can say by reviewing the literature available to you, he provides you what is the problem, or it helps to understand and investigate your research problem। वो आपको बताता है कि एक्चुअल में जो भी हमारे यहाँ जो इस, जैसे आपने मान लीजिए पावर्टी ले लिया, ठीक है, तो पावर्टी पे क्या काम पहले नहीं हुआ है? पावर्टी पे बहुत सारे काम हुए हैं। तो अब आपका काम पावर्टी से अलग जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो दूसरों से अलग किस तरीके से है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी तरीके से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कह सकते हैं कि कहीं पहले इस पे कितना काम हुआ है, उसी के थ्रू यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो इसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने से सबसे पहली चीज ये होती है दैट यू प्रिवेंट्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन, यानी कि आपको सबसे पहले ये पता चलता है कहीं आप जो काम कर रहे हैं, मीन्स यू कैन अवॉइड री इन्वेंटिंग द व्हील, मीन्स you can avoid the duplication, means a problem which has already been investigated and you are investigating that problem again in the same purview। आप सेम उसी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो कि पहले इन्वेस्टिगेट की जा चुकी है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक नया वे देखना है कि पहले वो कौन सी चीज़ है, कि अगर काम पहले भी हुआ है तो उसमें वो कौन सा एस्पेक्ट है जो कि छूट गया है, जिस पर काम नहीं हो पाया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। या नॉर्मल टर्म्स में अगर हम कहें तो लिटरेचर रिव्यू मीन्स गोइंग थ्रू what is already said about the topic you have chosen to research, that is finding out in what way the problem has been dealt with and what amount of additional information is available in recent years। यानी कि आज तक इस टॉपिक पे कौन कौन सा काम हो चुका है, कौन से वो एस्पेक्ट है जो कि अभी तक अनछुए हैं, मीन्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर रिसर्च तो आपके रिव्यू ऑफ लिटरेचर में यही चीज़ें पता चलती हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करें तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में सबसे पहले जो पहली चीज़ हमें पता चलती है वो ये है कि द पर्पस इज टू प्रोवाइड द बैकग्राउंड टू
एंड जस्टिफिकेशन फॉर द रिसर्च अंडरटेकन। यानी कि यहाँ पर यही चीज पता चलती है कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करना कि उसमें कैसे कैसे काम हुआ है, क्या काम हुआ है, पहले जो लोगों ने काम किया है उनकी क्या वीकनेसेस थी, अगर उन्होंने कुछ चीज़ें, अगर मान लीजिए काम रिसर्च कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट रह जाती हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम उन चीज़ों को ले करके काम कर सकते हैं, पहले जो काम हो चुका है और अभी जो हमारा काम हम करने जा रहे हैं, अगर सेम टॉपिक हमारा है तो कैसे दूसरे काम से हमारा काम अलग कैसे, उसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या हम सेम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं या हमारी कुछ चीज़ें एकदम अलग आ रही हैं। यानी कि जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है कि एक्चुअल में जो टॉपिक आप उठा रहे हैं उसमें कितना काम किस तरीके से हुआ है और क्या चीज़ें अभी भी वहाँ पर अनएक्सप्लोर्ड है जिसको आप अच्छे से उस पर काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ रिव्यू ऑफ लिटरेचर के ही बेसिस पे हमें पता चलता है कि इसके पहले इस टॉपिक पे जो भी आपका रिसर्च वर्क हुआ है उन टॉपिक्स में किस तरीके की मेथोलॉजी फॉलो की गई है, राइट। मेथोलॉजी इन द सेंस कि उसमें कौन कौन से वेरिएबल्स लिए गए, उन वेरिएबल्स का किस तरीके से किस पे कितना इम्पैक्ट देखा गया, किन वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप था कि कैसे ऐसे ही बस एक मतलब इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा था, किस तरीके से इन सारी चीज़ों में एक सिंक्रोनाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू के थ्रू ही पता चलती हैं। और फाइनली इतना सारा लिटरेचर रिव्यू करने से जो हमारा आउटकम आता है वो क्या पता चलता है, रिसर्च गैप। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इससे पता चलता है कि हमने जो भी लिटरेचर अब तक मिला या हमारे पास जो भी लिटरेचर है उस पर जो काम किया है उसमें हम गैप फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ों पे काम हो चुका है और ये चीज़ें हैं जिन पे अभी तक काम नहीं हुआ है और इन एस्पेक्ट्स पे हम अब काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपकी सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर रिव्यू से पता चलती है। और लिटरेचर रिव्यू के करने के बाद जो आउटकम आपका होता है दैट इज कॉल्ड रिसर्च गैप, और दैट इज कॉल्ड द you are going to find that area which has been not yet been explored or is under explored. Means a research gap is defined as a topic or area for which missing or insufficient information limits the ability to reach a conclusion for a question। यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए थे उस रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे हम आगे लेकर के जाएंगे, कैसे उसको हम प्रोसीड करेंगे, उनमें से कौन से वो मिसिंग चीज़ें हैं जिसके अभी तक काम नहीं हुआ है, यही सारी चीज़ें आपके रिसर्च गैप से हमें पता चलती हैं। और जब एक बार आपका रिसर्च गैप निकल के आ जाता है उसके बाद जो सिनॉप्सिस में नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले यही आता है कि व्हाट आर द स्टेप्स यू आर गोइंग टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस। यानी कि जो आपने यहाँ पर अभी तक रिसर्च आपने जो टॉपिक में आप बताना चाह रहे हैं, जैसे अगर मान लिया आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं या मान लिया आप कोई और चीज़ देखना चाह रहे हैं, आप एग्रेरियन क्राइसिस देखना चाह रहे हैं, तो जो भी आप टॉपिक लेकर के चल रहे हैं इन टॉपिक को हम कैसे एड्रेस करेंगे और उनको एड्रेस करने के लिए जो हमारी एक रिसर्च गैप निकल के आई कि जैसे अगर हम मान लें कि अभी तक फॉर एग्जांपल कि हम मान लेते हैं कि जो आपकी एमएसएमई सेक्टर है उसमें कोविड-19 का जो अनएम्प्लॉयमेंट उसके दौर में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ वो किस तरह से उसका क्या इम्पैक्ट डाल रहा है आपके लाइवलीहुड पे, अगर हम वो देखना चाह रहे हैं उसके लिए हम क्या किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक तरह से आपको कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपकी इन चीज़ों को बताते हैं, यानी कि एक आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को बताते हैं कि कैसे यू आर गोइंग टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक, और ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमें कैसे लिखना होता है, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये नहीं कि 5-5 लाइन 6-6 लाइन हम लिखते जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जब भी हम लिखते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स ये सिंपल सी बात होती है, objectives refers to the questions to which the researcher proposes to seek answers through the study, and the objectives may be stated like as to study the extent of, to study the
फैक्टर्स और टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस, इस तरह के करके हमारी जो आपकी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो एकदम से फोकस्ड होते हैं कि एक्चुअल में हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, टू स्टडी द इम्पैक्ट, मतलब डायरेक्ट उन चीज़ों को हम बताते हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि रिसर्चर के पास टाइम और मनी का कॉन्स्ट्रेंट होता है, तो वो चीज़ आपकी फिजिबल भी होनी चाहिए, वो चीज़ उसकी एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स में ये भी है कि objectives must be highly focused and feasible, as well as it should be presented in a concise and a brief manner। ठीक, यानी कि what you are going to achieve उसको हमें प्रॉपर तरीके से एक स्पेसिफिक फॉर्म में बताना पड़ता है कि ये चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव्स में आएंगी, और ये चीज़ें आपकी रियलिस्टिक भी होंगी कि किस तरह से कितने ड्यूरेशन में उसको हम कवर कर पाएंगे। और इसी तरह से वो आपकी एक तरह से स्कोप को भी उसी में हमारी डिफाइन हो जाती है कि ये चीज़ें हम उसको इस तरह से ले रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो ऑब्जेक्टिव्स आपके होते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव्स हम 15 20 25 इस तरह से लेके चल रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिव्स कभी भी जब हम रिसर्च के फॉर्म में लेते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, जिससे कि उसके आंसर्स को एड्रेस करने में भी चीज़ें नहीं, मतलब कि आपकी चीज़ें फिजिबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले 10-15 साल भी आपके निकल जाए तो आपकी थीसिस कंप्लीट नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ है कि कभी भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज, कंसाइज और फिजिबल वे में होने चाहिए कि आप उसको कितना रिसर्चर, एज अ रिसर्चर आप उसको कर पाने में कितने सक्षम हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। तो हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस जस्ट एक स्टेटमेंट होती है कि वो बताती है कि एक स्टेटमेंट जो कि आप बताते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट। और जैसे कि उसमें हम कह सकते हैं, उसमें हम अपनी नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ देते हैं और इसको हम टेस्ट करते हैं। ठीक है। और रिसर्च क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लोरेटरी फॉर्म में हमें क्या होती है कि हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में वो स्टेट की है क्या, तो हम पूरी तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मीन्स जैसे हम कह सकते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड दैट, और व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक, और कह सकते हैं कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस ऑफ समथिंग ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ का किसी चीज़ पे कैसे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ें भी हम एक तरह से रिसर्च क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी सबसे यहाँ पर चीज़ ये जो है एक्चुअल में रोड मैप की अगर हम बात करें तो रोड मैप में जो काम आपको शुरू होता है कि एग्जीक्यूट करने वाली काम, तो एग्जीक्यूट यानी कि जो आप रिसर्च करने वाले हैं उसको एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे, तो वो चीज़ आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के थ्रू ही पता चलती है। यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होती है वो प्रोवाइड करती है, एक कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक प्लान ऑफ अ प्रोसीजर फॉर द रिसर्चर टू फॉलो, कि यहाँ पर एक सिस्टमैटिक प्लान किस तरह से वो फॉलो करने वाला है, ये चीज़ें यहाँ पर पता चलती हैं। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि किस तरह से कि जो रिसर्चर है उसको एक डायरेक्शन मिलती है कि कैसे वो क्या, what is to be done, how it is to be done, when it has to be done at every stage। I repeat, in research methodology the researcher gets the direction to study and knowing exactly what has to be done, how it has to be done, and when it has to be done, and at each and every stage of the research। और इसी के थ्रू यहाँ पर एक प्रॉपर एक प्रायर तरीके से उसको पता चलता है प्लान वे में कि कैसे उसको क्या काम करना है। तो बिफोर दैट उसमें क्या आती है चीज़ें, सबसे पहले आती है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च मतलब कि आपका जो रिसर्च है वो एक्चुअल में ये जो रिसर्च है वो क्या है, क्या एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज दिस स्टडी इज अबाउट, किस तरीके की स्टडी है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है आपका एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी यहाँ पर मतलब ये है कि व्हाट काइंड ऑफ एरिया, और यू कैन सी किस तरीके की एरिया की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, विच प्लेस योर स्टडी विल बी कंडक्टेड, यानी कि आप यहाँ पर जो स्टडी की बात कर रहे हैं क्या एक पर्टिकुलर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि जो आप यहाँ पर एक स्टेट की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं क्या एक नेशन की बात कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं ओवरऑल सारी इकोनॉमी या पूरे वर्ल्ड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
तो मतलब ये है कि आपको अपनी रिसर्च मेथोलॉजी में ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपकी एरिया ऑफ स्टडी क्या है, ऑन व्हाट प्लेस द स्टडी विल बी गोइंग टू कंडक्ट, किस जगह पे कैसे आपने वो स्टडी कंडक्ट करनी है वो चीज़। नेक्स्ट आता है आपका सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सैम्पलिंग प्लान जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अब क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में मतलब अपनी इकोनॉमी ले लें चाहे दूसरे की इकोनॉमी ले लें, चाहे आप अपनी स्टेट की इकोनॉमी ले लें, चाहे आप अपने कंट्री की इकोनॉमी ले लें या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी ले लें, लेकिन कोई भी स्टडी जब आप करेंगे तो बीइंग अ रिसर्चर इन सोशल साइंस, अगर सोशल साइंस में जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो हमारी क्या होती है ना, जो चीज़ें होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नेचर की हो जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक तरह से ह्यूमन बिहेवियर या इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, तो अब उसमें अगर हम ह्यूमन को ले रहे हैं तो किन लोगों को ले रहे हैं, क्या पूरा पॉपुलेशन ओवरऑल को हम ले रहे हैं। यानी कि अगर हम सैम्पलिंग की बात करते हैं तो सैम्पलिंग में सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम कह सकते हैं कि सैम्पलिंग इज एन एक्ट or a process or a technique of selecting a representative part of a population for the purpose of determining the characteristics of the whole population। means कि आपकी जो कह सकते हैं जो सैम्पलिंग होती है, वो सैम्पलिंग क्या करती है, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल पॉपुलेशन। यानी कि आपको जो जिससे आपको जो डेटा कलेक्ट करना है वो चीज़ को आप सबसे नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट फिजिबल फॉर अ रिसर्चर टू कलेक्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और ईच एंड एवरी सैम्पलिंग यूनिट, सबसे आप मतलब नहीं कलेक्ट कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव लेने के आपके सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम्पलिंग यूनिट कौन से, यानी कि हम किसको मान रहे हैं, किससे हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो जैसे अगर हमने एग्रेरियन क्राइसिस का एग्जांपल लिया था, उसी को अगर हम आगे बढ़ाते हुए चले तो उसमें अब यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन होता है वो आता है फार्मर्स। ठीक है, क्योंकि सोसाइटल रिटर्न्स हम फार्मर की स्टडी कर रहे हैं एग्रेरियन क्राइसिस में, इस केस में। तो यहाँ पर फार्मर्स जो होंगी वो आपकी पॉपुलेशन होगी, लेकिन सारे फार्मर्स की स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उनको सैम्पलिंग यूनिट्स की बात करते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, a large number of units cannot be study, यानी कि मतलब टाइम एनर्जी मनी बहुत सारी चीजें आपकी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वो रूल्स वो प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं जिसके थ्रू सम एलिमेंट्स जो पॉपुलेशन के होते हैं वो आपके एज अ रिप्रेजेंटेटिव उस आपको शो करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, सैम्पलिंग प्लान मतलब कि इट रेफर्स टू द रूल्स एंड प्रोसीजर्स बाय विच some elements of the population are included in the sample which represents the whole population। और इस चीज को लिए ये सारी पॉपुलेशन को आपकी दिखाता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पलिंग साइज की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग यूनिट जो होती है वो आपकी एक बेसिक ऐसी यूनिट होती है, या हम कह सकते हैं एक ऐसी सिंगल एलिमेंट होती है पूरे पॉपुलेशन की जिसपे कि हमें रिसर्च करना है, जिसके बारे में स्टडी करना है। तो यहाँ हमारी सैम्पलिंग यूनिट जो होगी वो हम फार्मर को ले लेंगे, और सैंपल की क्योंकि बात हो रही है तो हम सारे फार्मर्स को ना लेकर के कुछ फार्मर्स को लेंगे। और सैंपल साइज जो होगा, सैंपल साइज हम यहाँ कह सकते हैं कि उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे बेजियर मेथड हो गया, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। क्योंकि अभी आपके पास यहाँ टाइम नहीं है तो हम इन मेथड्स को डिस्कस नहीं कर सकते, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको यहाँ पर हमें यहाँ पे सैम्पलिंग मेथड्स जो होते हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स और उसके सैंपल साइज को पहले हम डिफाइन करते हैं। और जब हमारा सैंपल साइज निकल के आ जाता है कि इतने में हम इतने लोगों को ले रहे हैं, इतने लोगों की स्टडी करनी है हमें, अलग अलग आपके मेथड से और अलग अलग आपके इसको कैलकुलेट करने के फॉर्मूले से जब निकल के आ जाता है, तब नेक्स्ट होता है कि अब ये जो सैंपल हमने निकाला है, कि मान लीजिए हमें 50,000 लोगों का सैंपल कलेक्ट करना है और यू कैन से हमें 400 लोगों का सैंपल कलेक्ट करना है। इन केस अगर 400 लोगों का सैंपल अगर कलेक्ट करना है तो किस मेथड के थ्रू हम सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, आइदर दैट विल बी अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दैट विल बी अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज द सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग चोजन। यानी कि पॉपुलेशन में से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का ये मतलब होगा
कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं यानी कि जितने फार्मर्स को हम पूरी पॉपुलेशन में कंसिडर कर रहे हैं वो पूरे के पूरे फार्मर्स यहाँ पर उनमें सबके पास इक्वल चॉइस होगा कि कोई भी कभी भी रैंडमली किसी को भी पिक किया जा सकता है। इस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं आपके, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे मेथड्स, लेकिन इसके डेप्थ में हम नहीं जा सकते अभी, तो बस एक ओवरव्यू ही दिया है मैंने। और सेकंड जो आता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें पर्पसली हम उस पर्टिकुलर पर्सन से यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि वो जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा डेटा किस तरीके का, यानी कि जो हम इंफॉर्मेशन लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन किस तरीके के सोर्सेज से हम कलेक्ट कर रहे हैं, आइदर दे आर प्राइमरी और दे आर सेकेंडरी। Primary sources, which is the first hand information by which you collect yourself or through any other person। मतलब कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है जो कि डायरेक्ट आपको मिलती है, और दूसरी जो होती है वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है। सेकेंडरी मतलब किसी और ने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी अपने किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, और आप फॉर द सेक ऑफ, आप कह सकते हैं आपकी टाइम सेविंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप उस डेटा को प्रॉपर तरीके से यूज यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम टूल्स की बात करें कि डेटा कलेक्शन के आइदर जो प्राइमरी आपने लिया या सेकेंडरी लिया तो उनका टूल्स के लिए यूज होंगे। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो उसमें आपका आ जाता है जैसे क्वेश्चनर्स बना लिया, इंटरव्यू शेड्यूल्स बना लिए। कई बार ये क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू शेड्यूल। क्वेश्चनर मतलब होता है कि आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर दिए, वो क्वेश्चंस आप लोगों को आइदर मेल कर देते हैं। ये क्या नाम है, ये जॉर्जी वालों ने हेलो, अपना जो है ना, मैं इसी को निकाल कर लिया है। ये किस मंथ का बनाना है? मेरी बात हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, आई थिंक टाइम भी हो रहा है शायद इसलिए बीच में इंटरप्ट किया गया, कोई ना। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका टूल्स यूज फॉर डेटा कलेक्शन, दैट इज क्वेश्चनर एंड इंटरव्यू शेड्यूल और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट आता है इन जो आपने डेटा कलेक्शन या जो क्वेश्चनर बनाया है वो किसके फॉर्म पे बना है, क्या एक रैंडम क्वेश्चन लिया है या उससे कुछ आप चाहते हैं। तो जो आउटकम हमें चाहिए होता है उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो वेरिएबल्स होते हैं आइदर दे विल बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिन पे हम जिनके में चेंजेस करके हम देख सकते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिस पे हम उसका रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कि दूसरे वेरिएबल्स को चेंज करने से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो चीज़ आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो जब हम आपका सिनॉप्सिस बनाते हैं तो सिनॉप्सिस में ही आपको चुनना पड़ता है। जैसे अगर आप पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को ले रहे हैं तो दे बोथ आर कॉज एंड इफेक्ट, मतलब एक दूसरे को कॉज भी करता है उसका इफेक्ट भी है। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर अगर देखना हो तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम एक को लिए, एक को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया तो दूसरे को हम कह सकते हैं कि वो आपका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट आपका आता है एनालिसिस फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस विच विल बी फॉलोड बाय, और मतलब जो भी आपने डेटा वहाँ पे आप कलेक्ट करेंगे उसको आप किस तरह से एनालाइज करने जाएंगे। एनालाइज यानी कि जैसे अभी आप यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, बहुत सारे आपने अभी तक SPSS, स्टाटा और इन सब के थ्रू देखा होगा कि कैसे चीज़ों को हम डेटा सिर्फ रॉ फॉर्म में हमारे पास होता है, उससे फिर हम अपना रिजल्ट कैसे लाते हैं उसके लिए आपको कुछ और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सारे टूल्स जिस पे अभी आपकी फर्दर क्लासेस चलेंगी वो बताया जाता है। और नेक्स्ट आता है कि उनके थ्रू कैसे फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फाइंडिंग्स हाउ यू आर गोइंग टू गिव पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ द रिसर्च। मीन्स आप कोई भी रिसर्च जो कर रहे हैं एक्चुअल में वो किस लिए कर रहे हैं कि उसका कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशन आपको देखना है, यानी कि क्या एक्चुअल में वो चीज़ हो रही है, क्यों हम वो रिसर्च कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी क्यूरोसिटी से शांत कर रहे हैं या उसके लिए आप कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन होगा वही आपके एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती है उनको सजेस्ट करने के लिए, उसमें और इम्प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी देते हैं। लेकिन फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि एक जो रिसर्चर होता है वो सारी चीज़ों को टेकअप नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बहुत तरीके के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी लिमिटेशंस में जाएंगी।
कि किन चीज़ों को आपको टेकअप करना है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी टाइम मनी कॉस्ट के कॉन्स्टेंट के होने के कारण इन चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं। और फाइनली आता है आपका टेंटेटिव प्लान ऑफ दिस थीसिस, मीन्स आपको चैप्टराइजेशन उसमें करना होता है कि कौन कौन से चैप्टर्स आप कितने रखने वाले हैं और उन चैप्टर्स में आप क्या क्या बताने वाले हैं। और फाइनली आपका आता है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। थैंक यू। उर्वशी मैम। हेलो मम्मी शैलेंद्र सर, आई हैव completed. Hello. So very sorry. I heartily thank Dr. Amisha Gupta ma'am for explaining the entire concept in a very simple form, which is the basic necessity for the research as I did. Thank you ma'am once again. Okay, and if any questions are there from the participant side, you may please write in the chat box. Ma'am is with us only. If you've got any other questions, you may please write in the chat box. And I want to say one thing more, that because of the shortage of time and since the topic is very vast,